ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟਰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਰੇਡੀਓ इंटरव्यूज, कॉलेजेस जाना करना, ਤੇ ਉਹ गाना टचवुड चल गया। कभी काला चश्मा का नाम हट गया, फिर बाद में आया, कई चीजें हुई, मैंने इंटरव्यूज नहीं दिए। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਫੈਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖੋ ਐਪੀਸੋਡ, ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਟਰਬਨ ਦੇਖੇ, ਪੋਨੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, मैं जिम करदा शेड ਹੁੰਦਾ मेरा रूटीन ਹੁੰਦਾ ਸੀ। फेम बहुत अच्छा हुआ कि अभी इतनी मुझे पहुंची नहीं थी, पहले मैं खुद ही उसको नीचे ले गया कि उसको लाइफ टाइम के लिए लंबा रखना है, तो इंदीप संभल जा। इतना फनी और इतना बढ़िया डिफरेंट एफ्रो बीट है। उस गाने की हुक है, लक करे तेरा शाका लक 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 बूम बूम, शाका लक 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 बूम बूम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਖੂਬ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੈਟਰਡੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਮੁਝਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੰਦੀਪ ਬਖਸ਼ੀ। Hey buddy, how are you? किदा? How are you? बहुत बढ़िया, तुसी किवें हो? बेटर ब्रो, ड्यू टू कोरोना थोड़ा सा अभी माहौल समझ ही नहीं आ रहा हो गया आफ्टर MS के ऑल्सो। मैं पहले मुझसे शादी करो कर सीगा, ते उस तो बाद वो लॉकडाउन से 3 महीने ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਰੀਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਟਸ ਬੀਨ 6 ਮੰਥਸ ਮੈਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਸਟੂਡੀਓ। ਆਲਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਝਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇੰਦੀਪ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਟਰਬਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਆਖਿਰਕਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੇੜ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਟਰਡੇ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਟੈਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਪਿਕ ਕਰਕੇ, ਈਅਰਫੋਨ ਤੋਂ ਡਬ ਕਰਕੇ, ਲੌਜਿਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਲਾਣਾ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸੌਂਗ ਆਇਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟਰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਕਾਲजेस ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਟਚਵੁਡ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੇ बेसिकली मेरी ठेठ पंजाबी नहीं हैगी। दिल्ली मेरे घर पे भी, यहाँ पे फ्रेंड्स में भी हम हिंदी पंजाबी मिक्स बोलते हैं। तो वो चीजें उसके बाद मुझे नहीं पता था कि इतना कमर्शियली ये चीज इन्वॉल्व होती है इस चीज में, क्योंकि मैं इस चीज में नया था। जब मुझे पता लगा सैटरडे गया एंड अ गुड कमर्शियल अमाउंट वाज इन्वॉल्व। कमर्शियली मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इस सॉन्ग से जब मुझे कमर्शियली पता लगा तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट होने लगी, बदलने लगी। एंड दैट टू अगर सैटरडे की बात करें जिसको टर्बन डाली है मैंने, मैं घर पे तब भी पोनी ही रखता था। एंड कितने लेजेंड्स हैं, कितने सिंगर्स हैं जो कि ऑलरेडी पहले टर्बन पहनते थे या कभी दूसरे लुक में आए हैं। पता नहीं इस चीज का हुआ क्यों बना। उनको लगा कि मैंने फेम आ गई तो शक्ल बदल ली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बॉडी बदली, मैंने मेहनत करी, क्योंकि तो मुझे पता लगा कि एक प्रोफेशनली मुझे इस लाइन में आना है। सबसे पहले कितने केसेस होने लग गए, कभी काला चश्मा का नाम हट गया, फिर बाद में आया, कई चीजें हुई, मैंने इंटरव्यूज नहीं दिए। आपने जैसे कहा गायब हो गया, मेरे लिए बहुत ईजी था ब्रो लाइमलाइट में आना, क्योंकि आपका आवाज नहीं है फिर भी आपका नाम है इंदीप बख्शी, तो इंटरव्यूज देने मेरे लिए बहुत ईजी थे। बट मैंने वो दिए ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए एक चीज थी कि मैं देता, लोग कहते हैं देखियो जिदा हुंदा पंजाब च ना लाइमलाइट च आने वास्ते जान के पॉइंट कर रहे हैं। आई टुक अ ब्रेक ब्रो। मैं सबसे पहले व्हेन आई वाज एन आर्किटेक्ट, मैं कभी भी ऐ नहीं सोचदा सी कि मैं कोठी बनाई है। मैं सोचदा सी कंज्यूमर जिहड़ा जिन्हों मैं बेच रहा ना, इज ही सैटिस्फाइड। तो बेसिकली सेम चीज हुई जब मैं आर्टिस्ट की गल की थी। प्रोफेशनल मैंने एक सिंगर बनना, एक परफॉर्मर बनना, क्या मैं एक नीचे फैन खड़ा होकर इसका फैन बनूंगा? वो बिल्डर लुक थी मेरी, पेट निकला हुआ 110। इट वाज नॉट अबाउट टर्बन, इट वाज अबाउट माय ये हेल्थ, शक्ल, ये शरीर, वो बिल्डर वाली एक फील हुई थी आगे। मैडम जी गाना आना सी उस वेले ते या मुलाकात हुई सी,
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਦੀਪ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਇੰਦੀਪ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਾਈਕ 360 ਡਿਗਰੀ ਟਰਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬ్రో, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈक्ट ਮੈਂ शुरू ਕੀਤਾ, मेहनत ਕੀਤੀ, अच्छा अमाउंट, अच्छी अर्निंग अपनी खुद की। तो एक छोटी उम्र में ना एक बंदे का दिमाग एक बहुत अलग होता है। एज छोटी ही थी, जितना मर्जी एक्सपीरियंस में ले लूं, बट एक जुनून एक अलग होता है। तो उस पॉइंट पे एक होता है ना कि चीजें समझ भी ना आनी, लीगली क्या होता है, केस डलने लग गए, चीजें मेरी बिकने लगी। मुझे बाद में पता लगा दिस इज कमर्शियली, वो मेरी किस्मत थी कि मेरी दिल्ली की जो मेरी छेड़ वाली लैंग्वेज है, जो भी मैं इंग्लिश सुनता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, वो एक लोगों को कमर्शियली पसंद आ गई एंड कमर्शियली बिक रही है। So, जब मैंने ब्रेक लिया ब्रो, तो वो साथ साथ ही हुआ, क्योंकि म्यूजिक कभी भी 6 महीने में नहीं सीखा जाता। वो आपको बीट बनाना सिखा देंगे, बट मुझे ये चीज थी कि अगर मुझे लाना, मैं उस टाइम पे हाउस म्यूजिक लेके आया था, फर्स्ट म्यूजिक का हाउस, रेगे म्यूजिक, एफ्रो बीट, तो सारी चीजें सीखते सीखते मेरे ख्याल से 4 साल लग गए ब्रो, करते करते। एंड जितने भी उसके बीच में दौरान गाने आए, दोस्त में लाइबिलिटीज, जो एक लाइबिलिटी थी जो मुझे फंसा दिया गया था कि भैया जी पाजी एल्बम करेंगे, 10 गाने हो गए, पेमेंट दे दो, आपके लिखे हुए गाने भी हो गए, साथ में आपको पंजाबी अपने देता हूँ। बट वो कुछ हुआ ही नहीं, जो मेरे लिखे हुए थे वो बॉलीवुड में चले गए, पंजाबी कहीं और बिक गए, मैं नंगा रह गया। मैं कहा ब्रो मेरी कमिटमेंट्स हैं, तो मैं वो कभी किस म्यूजिक वाले के पास बैठ के भाई बना दे, नहीं बना पा रहा, चल इसको ये तेरे पास बना हुआ इसमें चेंज करके ये मुझे दे दे, तो वो चीज हुई थी। सो आई टुक अ ब्रेक फॉर 4 इयर्स, लाइबिलिटीज खत्म हुई एंड आई थिंक दिस इज अ कमबैक। वो एमएसके उसके बाद मिल गया मुझे। जब मैं शूट करके आया यूएस से, मैं 5 गाने शूट करके आया था, इंक्लूडिंग मलकीत पाजी की फीचरिंग की है मैंने, जिसमें शूट मैंने किया, डायरेक्ट मैंने किया, म्यूजिक मैंने की है, कनिका कपूर के साथ किया मैंने, तो काफी गाने। तो उसके बाद एमएस के आया एंड उसके बाद अब यहाँ पे आया। तो फॉर मी इट वाज नॉट अ चेंज कि मैं हर एंड किया वो गाने सेट कर लेते सी म्यूजिक की दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਮੁਝਸੇ शादी करोगे आ गया, राइट? या I was about to release my song bro। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, मैं सच्ची दसा, क्योंकि बिग बॉस मैं आई थिंक शुरू ही उसके चक्कर में किया था मैंने, देखना कि देयर इज अ पंजाब की गर्ल, वो पंजाबी फ्लेवर है, मैं कौन है पंजाबी कुड़ी जिसने आग लगा दी बॉम्बे में, तो मैं उसको देखते देखते उसका फैन बन चुका था कि यार प्रेजेंट कर रही है, जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो ब्रो, जितने मर्जी बंदे बोल रहे हैं सैटरडे दिल्ली वाला पंजाबी, दिल्ली वाला पंजाबी, आई थिंक वही गाना है जिसने एक्सेप्ट कराया बॉलीवुड को, उससे पंजाबी गए। तो यही शहनाज है, जितने मर्जी लोग बोल रहे हैं ये करती थी वो करती थी, उसके चक्कर में आज पंजाबी को और रिकॉग्निशन मिली। आई डोंट नो ये क्यों बोलते हैं, बट मैं तो इससे मजे देखता कि पंजाबी लड़की है, माँ बहन कर रही है भैया, ये चलो चक दे फटे, मुझे नहीं पता लगा, मेरे को कलर बिग बॉस देखते देखते सचिन दीप ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖੋ ਐਪੀਸੋਡ, ਹੱਸੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਸ मैं इंदी बख्शी हूँ। कहते आप वीडियो में क्यों नहीं आते अपनी, मैं कहा मैं ही आया था सैटरडे में, कहते आप तो सही दिखते हो, मैं कहा मतलब वो बहुत गंदा दिखता है। एकदम से कहते सर एक ना हमारा शो बना रहे हैं, आप उसमें आओगे? अच्छा कौन सा शो? कहते दिस इज सेम बिग बॉस का प्लेटफॉर्म और आपको परसों ही आना है। अच्छा मैं कहा परसों आना है? हाँ इमीडिएटली ब्रो, आज फिनाले खत्म हुआ, मुझे बॉम्बे बुला लिया 2 दिन बाद। एंड मैं अभी 1 दिन पहले गूगल पे देख रहा था बिग बॉस का घर होता कैसे है, हर एक के अंदर क्यूरियोसिटी होती है वो घर कैसा है, तो गूगल पे देखना कोई पिक्चर्स दिखते हैं। एंड तीसरे दिन ही वो एक ऐसा सपना था, तीसरे दिन वहां पहुंच गए, शो चालू हो गया, 3 महीने निकल गए, तो एक अच्छी जर्नी। अच्छा तो वो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था ब्रो। हाँ तो जब इंदीप की उत्थे एंट्री हुई, बहुत सारे पंजाबियों ਨੂੰ समझ नहीं आया कि ਉਹੀ इंदीप है या नहीं, क्योंकि थोड़े दिन के ना हजम होने ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। बट जब सोच रहे ਸੀ कि जब मैं चेंज अपनी लाइफ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਮੇਰੇ 2 ਗਾਣੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਿੱਟ ਨੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬ్రో ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥਲਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਟਫ ਫॉर ਮੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਟਰਬਨ ਦੇਖੇ, ਪੋਨੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਡ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਮ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਯੂਐਸ।
ਤੇ ਉਹ ਚੇਂजेस ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਟਰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਚੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕਿਧਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਧਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ 2 ਬਣ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ 2 ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਸੈਟਰਡੇ 2 ਵੀ, ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ 2 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। I think this is good for me bro, ਕਿਉਂਕਿ personally for me fan ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ this is a profession bro, ਹਰ profession ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ 2 ਤੇ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ 2 ਦੋਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ हैं, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? Definitely bro, क्या बात है, definitely ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੌਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਬੇਬੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬੇਬੀ ਬੇਬੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ये कुड़ी सैटरडे का। इसका जो दूसरा वर्जन है दैट इज पहले लड़कियां सैटरडे करती थी दिल्ली की, आजकल लड़कियां करती है वीकेंड है, बेबी वीकेंड है। तो जो गाना आ रहा है उसका नाम है बेबी आज वीकेंड है, बेबी आज वीकेंड है। काला चश्मा 2 इज की मैं दोस्तों के साथ था, लड़की को मैं कहा आप पी लेना शॉर्ट्स पी रहे, वो कहती पागल है आंखों से पता चला पी हुई है। मैं कहा छोड़ काला चश्मा डालो कुछ नहीं पता लगता था। सेकंड का हो क्या ओ काला चश्मा पाके अजारा ने नचना, ओ काला चश्मा पाके अजारा ने नचना। वो ये लाइनें मुझे पता है दिल्ली पंजाबी का क्या फ्लेवर है ब्रो, तो इट गोना वर्क, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन इट। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਉਸ ਵੇ ਲਾਈਕ ਗਲੋਬਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਕੈਸੇ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਯੋਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਯੋਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਸੇ ਯੋਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। बिल्कुल थिंग वाज की एक्सेप्टेंस आई थ्रू हनी पाजी। आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाय, क्योंकि उन्होंने डोर ओपन किए एक नई चीज लाके। उसके बाद मैंने हाउस ट्राई किया, वो भी एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद वो फ्लेवर नहीं मिला, ऑडियंस को हमने आदत डाल दी। हम बेसिकली हम एक ऐसी बीमारी है पंजाबी कौम जिसके पास चली जाए उनको हमारी आदत पड़ जाती है। हम एक वायरस है ब्रो पंजाबी कौम, उनको आदत पड़ गई पंजाबी की। तो अगर प्रोडक्ट नहीं है दे हैव टू टेक एनीथिंग आउट ब्रो। अगर सैटरडे था वो कोई बिना टीम के गाना बना होता, कमरे में बनाया था हमने गाना, अब वो 10-10 बंदे डालते हैं कि कुछ वैसा बन जाए ब्रो। जो मेकर्स होते हैं वो ही बना सकते हैं। अगर वो प्यार वाली मूवी धर्मा प्रोडक्शन थी, वो धर्मा ही बना सकती है। मारपीट रोहित शेट्टी था तो रोहित शेट्टी सर ही कर सकते हैं। तो वही चीज है कि एकदम से जब गायब होगी चीजें, अब एक बंदा उनका फ्लेवर किसी का, तो पंजाबी अगर वो अपने जहाँ पे रहा है ब्रो वो वही चीजें लिख पाएगा, वो यहाँ की चीज नहीं लिख सकता। और बाय चांस ही वो मेरी किस्मत है कि यहाँ की चीज हिट है, क्योंकि वो हर जगह पे समझ आती है। दैट इज नॉट प्रॉपर। इनफैक्ट जो मेरा गाना आ रहा है सही दैट इज अ हरियाणवी सॉन्ग, दैट इज अ अर्बन हरियाणवी सॉन्ग। जिदा सैटरडे सीगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ हरियाणवी मेरे यार दोस्त बोलते थे, बेरा तन्ने ये वो, सिर्फ वही वर्ड यूज किया मैंने। यानी कि पतली कमर काले बाल माँ की कसम तू चीज कमाल तने खुद ने ना यो बेरा बेबी तूने के किया बवाल ना ना तेरे बिना लगता नहीं मन, ओहो तू मेरी जान ने मन, तू ये तने बेरा ये हल्का सा ठेठ करके कि जो ग्लोबली सबको समझ है, बॉम्बे के बंदों को भी पंजाबी को भी। यही मेरा म्यूजिक का फ्लेवर है ब्रो। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜਦੇ देख बिना बात के नखरे ना कर, देख बिना बात के नखरे ना कर, क्यों निकले तू बंठन कर, होके ब्रांडेड हेड टू टो, बन के पूरा फैशन शो, सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तो करे जब देखे हमें झूठी लायर, खुद ही आग लगाती है तू, मैं तो सेकूंगा, तू देखने की चीज है बेबी, मैं तो देखूंगा। That was the original rap. That was the original rap. Last की लाइन चेंज करी थी इन्होंने। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆ ਰੈਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੀਤ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ। बेसिकली दिल्ली इज अ हब, इधर हरियाणवी पंजाबी हिंदी सारा कल्चर है ब्रो। तो इट्स इजी फॉर मी, वो ग्लोबली पहुंच जाता है। एक रीजनल गाने को हम ग्लोबली पहुंचा देते हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दिस इज ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਲਾਈਕ ग्रैंड हिट ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ मिल पाया, इस चीज का रिग्रेट हैगा? नहीं ब्रो, आई थिंक जो भी टीम थी मैं बहुत ज्यादा खुश था। इनफैक्ट हूँ भी, अगर वो चीज ना हुई होती तो आज ये हिंदी बख्शी इंडिपेंडेंट ना होता। अगर मुझे उसी वक्त
म्यूजिक करके मेरी एल्बम दी जाती तो आज भी किसी को पता नहीं लगता इंदीप बख्शी क्या कर सकता है, क्योंकि बेसिकली सिर्फ टू टू करने से बजाने से नहीं होता, सोच होती है कि मुझे ये सिंथ डालनी है, ये लीड डालनी है, ऐसी बेसलाइन वोबल चाहिए, तो वो नाम ही खत्म हो जाता है। आई थिंक जितनी चीजें हुई परोस के, जैसे सैटरडे नाइट आपको पता है लोगों को लगता था कि ओवरनाइट स्टार बना है, ये तो बिल्डर था, इसने कुछ किया नहीं होगा। तो ये चीज होनी बहुत जरूरी थी ब्रो, क्योंकि ये 4 साल सिर्फ मैंने म्यूजिक में सीखा। आई हैव लर्न आई थिंक काफी चीजें, जैसा आपने कहा ना एक इंसान ही बदला हुआ देखा, तो वो चीज मैंने देखी अपने अंदर की। हाँ कहीं की चीजें हो सकता है बाय चांस लाइफ में मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में की हो, कुछ किया हो, तो एक एक चीज की वैल्यू, एक चीज छिनती है कैसे पता लगता है। फेम बहुत अच्छा हुआ कि अभी इतनी मुझे पहुंची नहीं थी, पहले मैं खुद ही उसको नीचे ले गया कि उसको लाइफ टाइम के लिए लंबा रखना है, तो इंदीप संभल जा, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, कोई इंटरव्यूज मत दे, ओवरनाइट स्टार बन जाएगा, उसके बाद क्या करूंगा मैं। अगर मैं इंटरव्यूज देता, सब देता, ओवरनाइट स्टार बनता, लोग मुझे एक्सपेक्ट करते गाना, बट मुझे म्यूजिक नहीं आता था, मैं कैसे दे पाता, लोग कहते गलत है। तो इस टाइम पे अच्छा हुआ ब्रो, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं यूएस रहूं, दुबई रहूं, मुझे आई जस्ट नीड अ लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर, मेरा डॉग चीज, सारा गाना बना के आई कैन सेल इट, मैं अपने फैंस को खुश कर सकता हूँ, अपने चैनल पे डाल सकता हूँ, सो आई एम इंडिपेंडेंट हूँ, काफी टेंशन फ्री। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? इनफैक्ट ये चैनल भी ब्रो, जो से चैनल अभी सही गाना आ रहा है, दैट इज माय ओन चैनल, जो मेरे अपना भाई इंद्रजीत सिंह राव के साथ मैंने चैनल शुरू की है। इनफैक्ट इसके अंदर कितने नए आर्टिस्ट हैं जो आ रहे हैं मेरे पास, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं गाऊंगा या मैं कुछ करूंगा, मुझे गाना समझ आता है, सिर्फ ये कि उनको मैच्योर म्यूजिक नहीं पता, मैं उनको चांस दे रहा हूँ। मेरा गाना आ रहा है फायर होंगे, नया लड़का दिलशान, छोटा सा लड़का है, उसे मैंने फीचर करा है, पूरा गाना किया, पूरा चेंज किया, रैप किया, उसको शूट भी किया। अब वो जो जो चीजें मेरे को लगती थी ना मेरे साथ हो रही है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, ओपन कंपनी है, मैं बैठा हूँ, म्यूजिक करूंगा, वीडियो करूंगा, प्रमोशन करूंगा, आओ कोई दिक्कत नहीं। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली आप बहुत ही जल्दी देखोगे गाने में, और ऐसे गाने में कि वो ब्लॉकबस्टर होगा, पंजाबी हिंदी हर जगह का गाना भी रेडी है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਬਿਗ ਬੌਸ 14 ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਗ ਬੌਸ 14 ਲਈ ਵੀ ट्राई की? ब्रो बिग बॉस 14, बिग बॉस आई टेल यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे खुद नहीं पता, हो सकता है मैं कल उस घर में हूँ, डेली पूरी टीम कनेक्टेड रहती है कलर्स की, ना हमें पता होता है। मैं आप सच बताऊं, कोई अगर बोल रहा है कि मैं चला गया हूँ उस घर में, तो वो झूठ है, कुछ नहीं पता होता। आप आज हो कल वहां चले जाओ, मुझे नहीं पता एमएसके में मैं कैसे पहुंच गया, हो सकता है वाइल्ड कार्ड पहुंच जाओ, कुछ नहीं पता। इंडिया मॉल एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तो पहले पूछ लेते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड, तो हम आपको आगे रिकमेंड करेंगे। मैं कहा इंडिया मॉल आपके लिए ऑलवेज इंटरेस्टेड, क्योंकि जो उसने पहचान दी है, क्योंकि इस टाइम पे जो एक शक्ल बनी है, लोगों को लगता है काफी राउडी है, ये मारेगा आके, शो के अंदर भी हो ये मारेगा आके, बट धीरे धीरे लोगों को पता लगा हु इज इंदीप बख्शी नाउ। जब ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, है ना ब्रो? वही चीज सी कि पर्सनली आई वाज रियली कॉन्फिडेंट, मैंने पता सीगा कि एज अ पर्सन मैं क्या हूँ, मुझे वहां जाना। एंड वो शो बिग बॉस एमएसके शो बने ही इसके लिए हैं कि आपकी रियल पर्सनैलिटी आती ही आती है। इफ यू थिंक 24/7 यू कैन एक्ट ऑन कैमरा, दैट इज फॉल्स, आप नहीं कर सकते। तो मुझे पर्सनली पता था, मैं इतनी मेडिटेशन, इतना एक अकेला और चीजें सीख के आ चुका हूँ कि मैं अंदर से इतना काम था कि वहां पे भी जो चीज हुई, पहले एकदम आया, उन्होंने बाहर कट कर दिया कि ठरकीन दीप डाल के इन्होंने बाहर फैला दिया, तो मुझे घर के अंदर पता लगने लगी चीजें गलत हो रही है मेरे लिए। बट सारे टास्क जीता, आई थिंक शहनाज के साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग, पूरी एंडेमॉल टीम के साथ बॉन्डिंग, लास्ट की डेट पे आप बिलीव नहीं करोगे, शहनाज मैं के साथ सारी पूरी टीम रो रही है, अच्छा ब्रो तू मतलब क्या बातें कर गया। तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। रिस्क पता कब होता है, जब आप सोच के चीजें करते हो, जब यहाँ से करनी शुरू करते हो तो ना आप कैलकुलेशन बंद हो जाती है ब्रो। मेरे पास एक आया बिग बॉस, एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो सलमान सर है, तो मुझे पता है कि अगर वो बुलाया तो मेरी किसी चीज को देख के बुलाया, मैं कुछ हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी को मैं कभी भी नहीं जान देता। मेरे लिए कोई चीज छोटी बड़ी नहीं है। कई लोगों ने बोला तू इंदीप बख्शी है, शहनाज तो अभी आई, मैं कहा शहनाज सबसे बड़ी आर्टिस्ट है ब्रो, सबसे बड़ी आर्टिस्ट है उस टाइम पे, तो मेरे अंदर कभी वो चीज हुई नहीं, ना कभी आएगी। क्या बात है। ਹੁਣ ਕੀ आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ गाने रिलीज करने? ब्रो बैक टू बैक प्लानिंग है कि हर मंथ 3 गाने। सो अभी पाइपलाइन में कल सबसे पहले कल गाना आ रहा है, दैट इज सैया, दैट इज अर्बन हरियाणवी, देन इज शाका लाका बूम बूम। तो ये गाना इतना फनी और इतना बढ़िया डिफरेंट एफ्रो बीट है। तो उस गाने की हुक क्या है, लक करे तेरा शाका लाका 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 बूम बूम, शाका लाका 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 बूम बूम।
उसके बाद फायर होंगे गाना आ रहा है, इट्स अ फीचरिंग जिसके अंदर मैंने एक्ट किया है, रैप किया है। उसके बाद काला चश्मा 2 आ रहा है, वीकेंड आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, मलकीत पाजी के साथ फीचरिंग गाना आ रहा है, कनिका कपूर के साथ लॉन्ग विदेश साहिब। तो बैक टू बैक सारे शूट हो चुके हैं। तो बैक टू बैक यही चीज है कि अगर आप देखेंगे तो जैन 8 तक के हमने गाने सारे प्लान किए हुए हैं, जिसके मैं नवंबर तक की शूट कर चुका हूँ। 3 बिग शूट रह गई हैं, वो मैंने प्लान करके शूट खत्म हो चुका। यानी कि बहुत सारे गाने हैं जो अब आप रिलीज करने के लिए तैयार है ना, यानी कि उन काफी ब्रो, काफी फुल धमाल है फीचरिंग है जिसके अंदर मैंने सिर्फ रैप डाला हुआ है। हाँ ऑलराइट, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਕੱਢੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 뮤직 ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਗੁੰਗੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਜ? जान तो पहला कल जोन सा गाना आ रहा है उसका मैं रैप सुनाऊंगा। आंदे भाई। पतली कमर काले बाल, माँ की कसम तू चीज कमाल, तने खुद ने ना ये बेरा बेबी तूने के किया बवाल, ना ना तेरे बिना लगता नहीं मन, ओ हो ओ मेरी जान ने मन, आहा चढ़ा है तेरा ही सुरूर, आ ना कर मजबूर, दिल्ली की छोरी ये नोटी ये हो रही है दीवाना कर रही है क्यों, मुझको बता देना घर का पता देना, नोटी तो मैं भी हूँ सैया। एक अच्छा डिफरेंट गाना, आपको काफी एक अच्छी वाइब लगेगी। क्या बात है, हम उम्मीद करते हैं कि इसका म्यूजिक और इसके जो ये जो रैप है ये जल्द से जल्द लोगों के ना जुबान पे चढ़ जाए पूरा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਇੰਦਰੀਪ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਟਰਡੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਬੜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ABP ਸਾਂਝਾ।